Sparsh, you tried to scribble the screen. That's wrong, Bache. So, beta, this is the chapter which we are going to start, which we had started rather. We had done maps, we had done about the earth and the globe. Today we will learn about maps. But before that, I want to ask you, yesterday we did this page. Now, can you show me, can you tell me which is the largest continent? Write in the chat box. Write in the chat box which is the largest continent. Very good. No, bache, Antarctica is wrong answer. Antarctica is wrong. Yes, Asia is the correct answer, but you should write in capital. Jasjot Singh, your answer is right, but you have written in small letter. So Asia is the largest continent. Okay, tell me, which is the largest ocean? Which is the largest ocean? Write in the chat box. Largest ocean. Yes, very good. Pacific Ocean, good, good. Pacific Ocean is the largest ocean. So now, anyone, just a minute. I'm going to show you. Okay, tell me. Write in the chat box. Asia is shown with which color? Asia continent. Yes, very good. Okay, good. So I think it is clear to everyone. This is North America continent. This is South America continent. Here it is Africa, Europe, Europe in red color. Then this one is Asia and Antarctica is here and Australia is this one, which is the smallest continent. So in this way, these are the 7 continents and we have 5 oceans. Arctic Ocean in the north, then Pacific Ocean is towards both the sides because our earth is round. हमारी अर्थ राउंड है तो दोनों तरफ हम पैसिफिक ओशन दिखाते हैं because it is round. Then comes Atlantic Ocean which is in S shape. Atlantic Ocean, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन and this water body is called Southern Ocean or Antarctic Ocean. Clear? So now let's do the next page. Here we have learnt about the limitations and the merits of globe. Globe के हमें क्या फायदे हैं, globe के हमें क्या नुकसान है, we did yesterday. I hope it is clear to everyone. So now today we are going to start about maps. Now you can see this is the picture of map. Map you have already done in your class 3rd and 4th also. So map is a flat drawing. ये क्या है? Map जो है flat drawing है. It is a flat drawing representing the whole part of an area on a flat surface. जो कि surface पे, flat surface पे किसी भी drawing को बना दिया जाता है. ये देखो flat drawing representing the whole part of an area on a flat surface. Clear? मैप में एक ये फायदा होता है कि ये छोटे से छोटे पार्ट का भी मैप बना सकते हैं हम और पूरी अर्थ का भी बना सकते हैं. इफ वी टेक सी वी हैव मैप ऑफ वर्ल्ड,
map of India, map of Asia. So if we want, we can have map of our school also, map of our home also. So छोटे से छोटे एरिया का भी मैप बन सकता है और बड़े से बड़े एरिया का भी बन सकता है. So maps are drawn to show continents, countries, cities and neighborhood. Clear? मैप वर्ड बना कहाँ से? ये वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड मैपो. मैपो वर्ड लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है जिसका मतलब होता है नैपकिन, क्योंकि इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं. सो इन दिस वे जो मैप है, दैट वर्ड हैज derived from Latin language, which means that it is a napkin and it can be rolled and it can be folded also. I hope this is clear to everyone. So now let me show you the another page. Just a minute. Here it is. Do you know? Do you know में ये fact दे रखे हैं. First one is, one of the earliest flat maps was made in Babylon. This ancient city was near Baghdad in Iraq. The map was carved into clay. पुराने टाइम पे जब कुछ भी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, उस टाइम पे भी मैप को यूज किया गया था. तो ऐसा माना जाता है इराक कंट्री में बगदाद नाम का एक बहुत फेमस, बगदाद उसकी कैपिटल होती थी, तो बगदाद के पास एक बेबीलोन नाम के एक फेमस सिटी थी जिसमें फ्लैट मैप को यूज किया गया था. वो मिट्टी पे बनाया गया था, ठीक है, ताकि रास्ता दिखाया जा सके. तो ऐसा माना जाता है कि मैप वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस एरिया. लेटर ऑन अब्राहम ऑर्टियस क्रिएटेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन 1574. क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ थी, लोगों को ये लगता था कि अर्थ फ्लैट है, वो आगे जाएंगे तो वो गिर जाएंगे. तो लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी एडवांसमेंट हुई, लोगों ने नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, लोगों ने एक दुनिया, एक चक्कर लगाने की सोची, दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं. तो उससे इनको पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं, राउंड है. तो इस तरह से एक सारे वर्ल्ड का मैप बनाया गया 1574 में. और जो लोग मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं. मैप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कार्टोग्राफर्स. मैप्स को बनाने वालों को कार्टोग्राफर्स कहा जाता है. और मैप बनाने की कला या मैप को रीड करने की, मैप को स्टडी करने वाली स्टडी को हम कहते हैं कार्टोग्राफी. क्लियर? नाउ मेरिट्स. मेरिट्स मतलब फायदे. हमने कल पढ़े थे ग्लोब के क्या फायदे हैं, आज हम पढ़ेंगे मैप के क्या क्या फायदे हैं. नाउ सी मैप. आप सबके पास मैप होते हैं. यू नो मैप्स टेल अस इन अ वेरी सिंपल वे. बहुत आसानी से हमें साइज और शेप के बारे में बता देते हैं. एक प्लेस का डिस्टेंस दूसरे प्लेस से कितना है वो इजीली हमें मैप से पता चल जाता है. और मैप में हम छोटे से छोटी एरिया को भी देख सकते हैं या फिर बड़े से बड़े एरिया को भी देख सकते हैं. उनकी पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं. अगर हमने सपोज अपने स्कूल का ही मैप देखना है तो स्कूल के मैप में हमें बड़े इजीली पता चल जाएगा कि 5th रेड कहाँ है, 7th रिसेप्शन एरिया कहाँ है. तो वी कैन शो इट फ्रॉम मैप. और सेम वे हम अपनी सिटी की बाउंड्रीज को भी देख सकते हैं. नेबरहुड में हमारे कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा फेमस लैंडमार्क है, दिस वी कैन सी फ्रॉम मैप. और मैप को बहुत इजीली हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं.
इसको हम रोल भी कर सकते हैं, फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और मैप्स में हमारे पास कई फीचर्स को भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे डेजर्ट है, फॉरेस्ट एरिया कौन सा है। तो सो दीज आर द गुड पॉइंट्स, यानी कि मेरिट्स ऑफ मैप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैप। मैप की लिमिटेशंस, मैप की कमियां क्या है। जैसे ग्लोब की तो बहुत सारी कल हमने पढ़ी, तो सबसे इसकी मेन लिमिटेशन है कि हमारी अर्थ जो है वो वैसे तो राउंड है ना, लेकिन मैप जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो शीट के पेपर की एक शीट पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है और इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड एंड राउंड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। क्लियर। अभी तभी तो पैसिफिक ओशन अगर जब हम करते हैं तो पैसिफिक ओशन हमें दो तरफ दिखाना पड़ता है क्योंकि हमारी अर्थ राउंड है। तो इस तरह से मैप की यही लिमिटेशन है कि हम मैप को एक्यूरेटली हम यूज नहीं कर सकते। और आजकल तो गूगल में फैसिलिटी है, इंटरनेट की हेल्प से हम गूगल सर्च करके कहीं से भी किसी भी प्लेस का मैप निकाल करके उसको रीड कर सकते हैं और कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स ने मैप मेकिंग को बहुत इजी कर दिया है। पहले मैप बनाना बहुत टफ होता था, लेकिन आजकल बहुत इजीली हम घर बैठे ही अपनी सिटी का, अपने कंट्री का, अपने कॉन्टिनेंट का, या बैठे बैठे अमेरिका का मैप भी खोल करके देख सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस दिस बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप जो है वो एक तरह के नहीं होते हैं। You have different maps in your previous classes. Political map है, see I am going to show you here. This is political map. Political map में ये देखो सेंटर के अंदर लाइट कलर में बाउंड्रीज को शो किया जाता है। These are the states politically divided है। राजस्थान जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो दीज आर द पॉलिटिकल डिविजन्स। तो इस ये सारी चीजें जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स दिखाई जाती हैं, ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही पॉलिटिकल मैप होता है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप देख सकते हो, क्योंकि हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन सी स्टेट है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, वर्ल्ड में ये देखा जाता है। तो इस तरह से जहाँ पर पूरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताई जाती है। अब इंडिया की बाउंड्री ये देखो, यहाँ से इंडिया की बाउंड्री है, लेट मी शो यू। ये सॉरी, ये इंडिया की बाउंड्रीज है, तो इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। और ये देखो, ये नेपाल का, इट विल बी विजिबल टू यू। दिस इज द बाउंड्री ऑफ नेपाल, नेपाल और बांग्लादेश। सो दीज आर द बाउंड्रीज। तो यहाँ पे हम नेपाल को देख सकते हैं। तो पॉलिटिकली डिवीजन हो गए। तो फ्रॉम पॉलिटिकल मैप we can come to know about the political divisions, political boundaries of any country or a state. So this is called political maps, जो कि हमें states और उनकी capitals को दिखाता है। Then comes physical map. Physical map में we can see different features, landforms हैं, जैसे कि यहाँ पे mountains हैं, we can show mountains here, clear? We can show the rivers. हम अगर rivers को देखना चाहें तो rivers को हम दिखा सकते हैं, यहाँ से गंगा river जा रहा है, और this way we can show rivers, mountains and desert,
ये एरिया जो है ये डेजर्ट का एरिया है, वी कैन शो डेजर्ट हेयर, islands are there, these are the islands. So these physical features we can show in the physical map. Clear? Next comes special map. स्पेशल मैप वो होते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर फीचर को शो किया जाता है, जैसे कि वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, पॉपुलेशन है. हियर इन दिस एग्जांपल आई हैव टेकन मेजर क्रॉप्स एरिया. ये लाइट ग्रीन कलर में राइस है, वीट है. तो अलग अलग एरिया से पिक्चर्स में, ये मैप में हमें अलग अलग एरिया में कलर करके बताया गया है कि कौन सा एरिया जो है वो राइस प्रोड्यूस करता है, कौन सा एरिया वीट प्रोड्यूस करता है, कौन से एरिया में ज्वार होती है. सो इस तरह से जब हमें किसी पर्टिकुलर फीचर के बारे में पता चलता है तो उसको हम कहते हैं स्पेशल मैप्स. अब नेक्स्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बताई गई है, कहाँ पे पीकॉक्स हैं, कहाँ पे लायंस हैं, कहाँ पे फर ट्री है, पाइन ट्रीज है, एलिफेंट कहाँ है. सो दीज आर द स्पेशल मैप्स वेयर ओनली वन पर्टिकुलर फीचर इज डिपिक्टेड थ्रू मैप. क्लियर? मैप्स क्यों ज़रूरी है? मैप हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. ट्रैवलर्स जो है वो रोड मैप यूज़ करते हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो अपने पास मैप रखते हैं ताकि उनको पता चलता जाए कि कौन सी रोड को उन्होंने फॉलो करना है अगर अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए. मीटियोरोलॉजिस्ट है वो वेदर मैप को चेक करते हैं, डेली आपके पास वेदर फोरकास्ट आता है कि कल मौसम कैसा होगा. तो इन दिस वे मीटियोरोलॉजिस्ट यूज वेदर मैप. सिटी प्लानर्स हैं वो मैप, सिटी का मैप यूज करते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्लानिंग करनी है, कहाँ पे स्कूल रखना है, कहाँ पे हॉस्पिटल रखना है, सिटी मैप को यूज करेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्कूल है तो दूसरा स्कूल थोड़ा पास में ना बनाए, थोड़ा उस एरिया पे बनाए जहाँ पे बिल्कुल स्कूल की फैसिलिटी नहीं है या जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे. तो इस तरह से different maps are used by different persons. Next comes difference between maps and globes. Maps और globe में क्या फर्क है, हमें क्या चाहिए? हमें मैप अच्छा लगता है कि ग्लोब? हम इसमें दोनों का डिफरेंस पता करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले मैप, पहले तो इनकी डेफिनेशन देंगे. मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ, जबकि ग्लोब इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. Then comes a map can be used to show small part of the earth. Globe shows the whole earth. Next, it can show many details of that but part of the earth. किसी भी पार्ट को बहुत अच्छे डिटेल में बताना हो तो मैप इज वेरी यूजफुल. लेकिन ग्लोब में इनफ स्पेस नहीं होता है कि वो छोटी छोटी चीज की भी डिटेल बता सकें. सो हियर ग्लोब्स कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ any particular city or area. A map can be easily carried with you, but it is very difficult to carry globe around. The whole map can be seen together, but only half of the globe is visible at one time. So in this way, we can come to know how maps are different from globes. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम दोनों को यूज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. अदरवाइज मैप जो है दैट इज मोर बेनिफिशियल देन ग्लोब. सो अगर हमने मैप यूज करना है तो उसके लिए हमें मैप की लैंग्वेज भी आनी चाहिए. मैप की लैंग्वेज का क्या मतलब है? मैप में कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, लाइक डायरेक्शंस. डायरेक्शंस हम लोगों को पता है कि देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. जो मेन डायरेक्शंस होती है ना, 4 डायरेक्शंस, इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. और जो मैप का टॉप होता है
वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन। सी, ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, तो जो इसका टॉप है दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ। A map always shows the north direction marked N। कई मैप्स के ऊपर लिखा होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है N। क्लियर? बट कईयों पे नहीं लिखा होता, तब भी ये क्लियर है कि जो टॉप है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन और जो बॉटम है दैट इज साउथ डायरेक्शन। एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, इट इज ईस्ट डायरेक्शन। And towards the left hand side this direction is west। so in this way मैप की लैंग्वेज में हमें अगर नॉर्थ देखना है तो हम ऊपर देखेंगे, साउथ देखना है तो हम नीचे देखेंगे। ईस्ट इज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वेस्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो इन दिस वे मैप को हम रीड कर सकते हैं। अगर हमें एक डायरेक्शन पता है, नॉर्थ डायरेक्शन पता है, मैप पे नॉर्थ डायरेक्शन एन लिखा हुआ है, या पता है ऊपर वाली साइड एन ही है, तो इजीली हम दूसरी डायरेक्शंस को भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे मैप इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस आल्सो। मैप के साथ साथ जो सन है दैट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शंस। पुराने टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कहाँ से उनको डायरेक्शंस का पता चलता था? दे यूज टू टेक हेल्प ऑफ सन। सन ईस्ट से राइज करता है, तो अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन पता चल गई तो उससे हमें पता चल जाता है कि ईस्ट इस साइड है, तो उसके साथ वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम सन की हेल्प भी ले सकते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। दिन के टाइम तो सन यूज हो सकता है, लेकिन रात के टाइम पे जो ट्रेवलर्स थे वो क्या करते थे? नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ पोल को शो करता है, तो नॉर्थ स्टार की हेल्प से अपने रास्ते चुनते थे कि ये नॉर्थ स्टार जो है उसकी एक क्वालिटी है कि वो ट्विंकल नहीं करता है, इट इज देयर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल में है, तो उसके पता चल जाता था कि ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ को जाती है। सो नॉर्थ स्टार जो था वो लोगों की हेल्प करता था रात को डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ साथ 4 सब डायरेक्शंस भी हैं। सब डायरेक्शंस क्या होती हैं? अब ये देखो, टुवर्ड्स दिस साइड ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई एरिया इस जगह पे है तो हम क्या कहेंगे? द लोकेशन इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाला एरिया है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। सेम वे साउथ और वेस्ट के बीच वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला एरिया जो है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो अब जैसे हमारा पंजाब है उसकी लोकेशन हम देखें तो इट कम्स इन नॉर्थ वेस्ट एरिया। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस, जिनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और एक बात ये भी है कि सारे वर्ल्ड में इसको देखने का मेथड सेम है। ऑल द मैप्स फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शंस। क्लियर? इसके साथ साथ ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम कंपास कहते हैं। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सेलर्स टू टेल इफ दे आर गोइंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। The needle of the compass always points to the north.
ये एक मैग्नेटिक कंपास होती है, इसमें एक मैग्नेट लगा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसे हमारी घड़ी होती है ना, तो इट रोटेट्स, इसकी नीडल्स घूमती रहती हैं, तो इसमें भी ऐसी नीडल्स होती हैं, लेकिन जो नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन, हम जिधर ईस्ट में मुंह करके खड़े होंगे तो ये नीडल घूम करके नॉर्थ साइड पे चली जाती है। तो इस तरह से नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। इसकी हेल्प से भी सेलर्स या जो पायलट्स होते हैं इसको यूज करते हैं ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट कर ले, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन मिल जाती है तो दूसरी डायरेक्शंस इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? So next comes scale of map. This we will do tomorrow. So let me stop sharing the screen, and after that if you have any doubt you can ask me. uh, Today I will also give you few questions to note